Hello and welcome to Civil Services YouTube channel. Like, share and subscribe Civil Services YouTube channel. Topic Part 16 and Part 17 of the Indian Constitution. आज हम पढ़ेंगे. पहले चलते हैं Part 16 की ओर. Part 16 of the Indian Constitution deals with the special provisions relating to certain classes. It specifically addresses provisions for scheduled castes, scheduled tribes, and Anglo-Indian representation in parliament and state legislatures. These provisions aim to safeguard the interests and promote the welfare of these marginalized communities in India. ये प्रोविज़न जो पार्ट 16 में है ये एससीज, एसटीज और एंग्लो इंडियंस के लिए है ताकि ये पीछे ना रहे. इनके लिए वेलफेयर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर इनके लिए किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि ये भी आगे बढ़ जाएं. पहला क्वेश्चन, व्हाट डज पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस एससीज, एसटीज एंड एंग्लो इंडियंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which communities are specifically addressed in part 16? SCs, STs and Anglo-Indians. What does Article 330 of the Constitution provide for? Reservation of seats for SCs and STs in the House of the People Lok Sabha, lower house के लिए. What are Anglo-Indians in the context of the Constitution? Persons of Anglo-Indian descent who have been nominated by the President to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Anglo-Indians जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. Next question, under Article 332, what does the Constitution provide for in relation to seats in the legislative assemblies of the states? Legislative assemblies में जो seats होती हैं उनके लिए रिजर्वेशन होती है. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs and STs अलग होती है ताकि इनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए. नेक्स्ट, which article deals with the nomination of Anglo-Indians to the Lok Sabha? लोक सभा के लिए lower house of the पार्लियामेंट आर्टिकल 331 के मुताबिक इन्हें नॉमिनेट किया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल 335? इट इंश्योर्स दैट द क्लेम्स ऑफ SCs and STs in the matters of employment are taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration. आर्टिकल 335 के मुताबिक एंग्लो इंडियंस SCs और STs उन्हें प्रमोशन दिया जाए एम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाए. Which article prohibits the discrimination against SCs and STs in respect of access to public places? पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस मतलब वो जा सकते हैं. आर्टिकल 338 के मुताबिक वो किसी भी जगह जा सकते हैं, उन्हें कोई रुकावट नहीं होगी. Next, under which article is the National Commission for Scheduled Castes established? National Commission for Scheduled Castes 338 आर्टिकल के मुताबिक है. 338A. Which constitutional article establishes the National Commission for Scheduled Tribes? इनके लिए भी आर्टिकल 338A है. नेशनल कमीशन इनके लिए भी बनता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए. Next, what is the role of the National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes? इसका रोल है to investigate and monitor all matters relating to the safeguards for SCs and STs under the Constitution. आइन के मुताबिक इनके लिए जो भी इनके लिए safeguards होते हैं इनका welfare. Next, which article empowers the President to specify the tribes or tribal communities or parts thereof as scheduled tribes? आर्टिकल 342 के मुताबिक.
प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो किस कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब नॉमिनेट करे। विच आर्टिकल डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ SCs एंड STs। प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है आर्टिकल 365 के मुताबिक वेलफेयर ऑफ SCs और STs प्रोवाइड करने का। What is the purpose of Article 366? It defines scheduled tribes for the purpose of the Constitution. आर्टिकल 366 के मुताबिक ये शेड्यूल ट्राइब्स फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल आर स्पेशल प्रोविजंस मेड बाय पार्लियामेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। OBCs जो हैं या SCs या STs हैं उनके वेलफेयर की या एडवांसमेंट के लिए ताकि वो भी आगे बढ़ जाएं, आर्टिकल 340 के मुताबिक ये पार्लियामेंट को इख्तियार है वो उनके लिए प्रोविजंस बनाए ताकि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाए, मतलब उनके लिए मौके फ़राहम किए जाए ताकि उन्हें भी नौकरी मिल जाए, वो अपलिफ्ट हो जाए, समाज में जो पीड़ित होते हैं मतलब। नेक्स्ट है पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड रीजनल लैंग्वेज। इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोविजंस रिगार्डिंग द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑब्वियसली हिंदी है, ओरिजिनल लैंग्वेज डिफरेंट रीजन्स में होती है डिफरेंट लैंग्वेज, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जो यूज़ होती है उनके मतलब ये पार्ट है भारत के आईन का। चैप्टर्स ऑफ पार्ट 17 टोटल इसके 4 हैं। फर्स्ट, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, सेकंड, रीजनल लैंग्वेज, थर्ड, लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एट्सट्रा, और चौथा है स्पेशल डायरेक्टिव्स। इसके 4 पार्ट्स चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, until when is English allowed to be used alongside Hindi for official purposes? Until a resolution is passed for its discontinuation. English कब तक इस्तेमाल होगा ऑफिशियल लैंग्वेज के मतलब alongside हिंदी के? हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा जब तक ना रेजोल्यूशन पास हो जाए पार्लियामेंट में इसे डिसकंटिन्यू करने के लिए, तब तक इंग्लिश चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिक्लेयर्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? जो हिंदी भाषा है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज 343 के मुताबिक देवनागरी स्क्रिप्ट में दिया गया है, डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which article deals with the constitution of the official language commission? Article 344। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को 344 आर्टिकल के मुताबिक बनाया जाता है। इसका काम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? To make recommendations for the progressive use of Hindi as the official language। इसका काम यह है कि ये recommendations दे सरकार को ताकि वो इसका हिंदी का प्रोग्रेसिव यूज़ किया जाए एज ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल एम्पावर्स स्टेट लेजिस्लेटर्स टू अडॉप्ट एनी लैंग्वेज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? वो कौन सा आर्टिकल है? 345 आर्टिकल है। स्टेट लेजिस्लेचर्स को ये पावर होता है वो किसी भी लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 346, फॉर हाउ लॉन्ग कैन इंग्लिश कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन? इसका जवाब है एज लॉन्ग एज कंसिडर्ड नेसेसरी। जब तक ज़रूरत है आर्टिकल 346 के मुताबिक इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाएगा।
जब ज़रूरत ना पड़े तो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो जाएगी, इसे डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। Which article deals with a special provision for the use of Kannada language in Karnataka and Uri language in Odisha? कन्नड़ जो लैंग्वेज है ये कर्नाटका में बोली जाती है और उरी उड़ीसा में। ये आर्टिकल 347 के मुताबिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल व्हाट डज आर्टिकल 348 डील विथ? लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट्स। 348 आर्टिकल के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स बहुत सारी हैं, उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? Which article provides for the special provision relating to language spoken by sections of the population in a state? Article 349 जो लैंग्वेज मतलब कोई भी सेक्शन जो है वो जो बोली बोलते हैं उनके लिए आर्टिकल 349 में स्पेशल प्रोविजंस रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 350 व्हाट डायरेक्टिव डज इट प्रोवाइड रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन? इसका जवाब है इट डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। आर्टिकल 350 के मुताबिक जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं जो जिन्हें अलग बोली है, मतलब जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जिनकी बोली बिल्कुल अलग है दूसरों से, जिनके बहुत से कम लोग हैं, उन्हें उनके बच्चे प्राइमरी स्टेज तक अप टू 5th स्टेज तक अपनी मातृभाषा में पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होती है उनके लिए एडुकेट फैसिलिटीज़, ताकि वो टीचर ऐसे बनाएं जो उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ा सके। नेक्स्ट विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज? आर्टिकल 350A के मुताबिक आपको प्राइमरी स्टेज में, जैसे अभी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है उसके मुताबिक भी 5th तक मदर टंग में ही पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू रेगुलेट द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन? आर्टिकल 351 के मुताबिक पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो हिंदी को ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन के लिए रेगुलेट किया जा सके, कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल अलाउज द गवर्नर टू एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन द स्टेट? आर्टिकल 350B गवर्नर उस भाषा में एड्रेस कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की हो, उसे ये इख्तियार है आर्टिकल 350B के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कमिटी ऑफिशियल लैंग्वेज पर आर्टिकल 344 के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई होप सॉरी आज इतना ही था। वीडियो को लाइक और शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर।